हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। एंड हम लोग हमारा थर्ड लेक्चर जो है स्टार्ट करें, दैट इज गैलीलियोज ऑब्जर्वेशंस। जब बॉडीज फॉल करती हैं, सो हाउ दे बिहेव, ठीक है, दोनों साथ साथ गिरती हैं, नहीं गिरती हैं, इन चीज़ों की स्टडी आज हम लोग करने वाले हैं। वैसे तो हमें रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स तो पहले से पता है कि भाई हमें पता है कि दो ऑब्जेक्ट गिरती हैं तो कौन पहले गिरेगी कौन बाद में, हमें ये बात पता है पहले से। But according to the laws, according to the scientist, what is the difference between the motion or even the speed जिसकी वजह से वो नीचे गिरती हैं, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है, कब कौन कैसे गिरता है, ये चीज़ हम लोग आज डिसाइड करेंगे। एंड ऑब्वियसली वी विल बी वेरी मच डीपली सीइंग that is the main goal for today itself. And also we will be learning about the acceleration due to gravity. All right, so that is a new topic also, and we will be doing some calculations also, right? So be ready for that. You all know that these topics जो कि हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, these topics will definitely make you able to crack the school examinations, also the Olympiad level. So we are very much reading for the Olympiad level, ताकि आप स्कूल एग्जामिनेशंस के साथ साथ आप ओलंपियाड्स के लिए भी पढ़ सकें, क्लियर कर सकें उन्हें, राइट? एंड it is also for NTSC and NSCHS, right? You can definitely go for them, you can definitely study for them, right? If you want any DPP or study material, you can access them through our Telegram channel. You can write this code TTB009. अगर तुम ये कोड लिखते हो टेलीग्राम ऐप के सर्च बॉक्स में, you will be getting the 9th channel for our talking textbooks, right? And उसके बाद आपको क्या पता चलेगा, that you can join that, right? You can be getting the DPP study material along the notifications, right? Now see, this is the team which is doing very much hard work for you all, and we as a team, including me, we are doing a very much hard work for you all so that we can provide you the quality lectures, also the content which can make you crack the examinations, basically the NTSC, right? NSCJS, that is the most important exams in the 9th and 10th category, right? And that is why we are providing you, because we are providing this content actually, because this is a very much good thing. If you go for those and you study for them and you crack those examinations, right, that is a very good thing. You should definitely go for that, give it a try, even you know about it or not, but let's do it. All right, now see, along with this, along with providing you the lectures, the free lectures to you, along with this we are providing you, you can say, a guidance, a proper full guidance along with a test series, right? Now you can see that if you go on our website www.talkingtextbooks.in, if you go on that website, you will be getting two type of packages. The number one is the full package, or we can say the full guidance package, और दूसरा जो पैकेज है दैट इज ऑफ द टेस्ट सीरीज, राइट? अब आप देख सकते हैं कि जो फुल पैकेज है उसके अंदर काफ़ी कुछ है, एंड ये जो फुल पैकेज में चीज़ें हैं, दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स विच शुड बी स्टडीड टुगेदर, राइट? एंड दैट इज़ द मेन थिंग, क्योंकि आपको चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, राइट? यू विल बी गेटिंग अ स्टडी मटेरियल which is very much structured in such a way that you can attempt the school examination with this. Also you can attempt the Olympiads. All the questions in both the examinations, those are for practice, right? As you can see, recorded and live classes you are getting, right? Along with that, you are going to do the homework also, and you are going to submitting it to us. Basically you will be submitting it to us, and also उसके बाद homework करने के बाद you will be getting a test, you will be doing the test, right? That is the bi-weekly quizzes, and bi-weekly quizzes जो हैं वो बहुत important है, because you are going to be tested twice a week, right? मतलब एक week में you are going to be tested twice, and that is of the per lecture also. Means you are studying, giving a test, testing yourself, are you getting the point or not, are you able to solve the questions or not, and then again in that week you are again going to get a test, right? That is the main thing. Also you will be getting the next periodic test papers. Periodic test papers will let you know the exact pattern of the examination you're gonna fight. Alright, so basically जो आपका पेपर पैटर्न है, राइट, जिस भी एग्जाम को आप डिसाइड करें, दैट इफ़ यू वांट गो फॉर द NTSC, सो NTSC का क्या पेपर पैटर्न रहता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? व्हाट इज द लेवल ऑफ दोज क्वेश्चंस, हाउ मच नॉलेज यू शुड हैव टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, राइट? दैट इज द मोस्ट बेसिक थिंग, एंड यू विल बी गेटिंग
that much clarity from the periodic test papers. That is our motive. That's why we have provided this to you all. Now these are the minimum things you need to crack any examination, right? And if you're interested in taking the test series only, then you can go for it, right? You can definitely join that. You will be getting the periodic test papers, recorded in live classes, bi-weekly quizzes, all right? And if you have any query, definitely, if you have any query, if you want to know about these packages, more information, then you can call us, and the number is 919549041111. all right? And even if you are interested in buying these packages, you can write my code CY Live. If you write this code, you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. all right, that is the main thing I wanted to tell you. Now let's move on to the lecture, but before that, let's promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. That is a must, right? क्योंकि देखिए 9th में जो टॉपिक आप पढ़ेंगे वही टॉपिक 10th में जब आप NTSC देंगे तब वहाँ पे काम आने वाले हैं. Alright, so ये भूलने के लिए नहीं है. Alright, what we are studying is not for to forget, right? डेफिनेट सी बात है, आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी. either you wanna go for the JEE, either you wanna go for the NTSC or any other competitive examination. Again, you are going to study these topics which we are going to study in class 9 in the either 11th or in the higher classes. You will be dealing them again in your future. That is why let's make sure that we got them correct and stick in our mind. All right. Now let's move on to the lecture. We are going to study the Galileo's observations and acceleration due to gravity in this lecture. Alright, this is the lecture 3rd. Now see, Galileo's observations on falling bodies, that is what we are going to do today. Then we will be looking forward to the acceleration due to gravity. Then we will be looking forward to the value of acceleration due to gravity on the moon. We will be calculating that. Obviously, I am not, you are going to calculating that. Mass of the earth, we are going to calculate the mass of the earth from the information we have from the Newton's laws of gravitation. All right, us information se we are going to calculate the mass of the earth. That is our main goal. These 4 are the main goal for today's lecture. So let's do it and let's start. All right, then let's start the topic Galileo's observation on falling bodies, right? So अभी अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ ये क्वेश्चन दैट 2 थिंग्स, अ स्टोन एंड अ फीदर, ठीक है, ये दोनों सेम हाइट पर अभी हैं, ऑलराइट, एंड जब ये सेम हाइट पे हैं तब इन दोनों को बिल्कुल एक साथ जो है ड्रॉप किया, ऑलराइट. सो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कौन पहले पहुँचेगा ज़मीन तक, तो आप लोग मुझे नहीं लगता कि कोई ये बोलेगा कि सदर पहुँचेगा, नहीं, हर कोई यही बोलने वाला है कि भाई ये स्टोन जो है ज़मीन तक पहुंचेगा, राइट. चाहे किसी को ग्रेविटेशन आता हो नहीं आता हो, हर कोई यही बोलेगा कि ये पत्थर ही नीचे पहुंचेगा. क्यों? अब जब हम पूछेंगे कि भाई क्यों ऐसा होगा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है दैट कौन सी बॉडी सबसे पहले नीचे पहुंचेगी. वी हैव डिसाइडेड, है ना, हम लोगों ने बोला पत्थर पहले पहुंचेगा. क्यों? हम बोलेंगे पत्थर भारी है. ऑब्वियसली ये हमारा लॉजिक है, जो भारी चीज़ होती है वो सबसे पहले गिरती है. Heavier the body, the more faster it falls, right? So this is our conclusion. What we think, what we feel like, and what we see actually, what we observe is that stone will reach first to the ground according to us, and heavier body falls faster than lighter body. That's our assumption. ठीक है, ये हम लोग सोचते हैं, बट ये गैलीलियो नहीं सोचते थे. अगर गैलीलियो को सेम क्वेश्चन पूछा जाता तो गैलीलियो बोलते कि इन दोनों को तो सेम टाइम पे अगर हमने छोड़ा है तो ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम ज़मीन तक पहुंचेंगे, ठीक है, ये गैलीलियो बोलते हैं, ठीक है. इवन इस बात को प्रूव करने के लिए कि अगर हम किन्हीं भी 2 बॉडीज़ को सेम हाइट से नीचे जो है हम उनको गिराते हैं, सो दे फॉल एट द सेम टाइम, ठीक है, वो सेम टाइम पे ज़मीन पर पहुंचते हैं. लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो हम इसे देख पाते हैं कि भाई स्टोन पहले पहुंचा और फिदर आराम से झूलते 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 नीचे पहुंच रहा है. फिर हमारा ऑब्जर्वेशन गलत हुआ अगर गैलीलियो सही थे तो, राइट. लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दीज थिंग्स. सो गैलीलियो ने अपनी बात प्रूव करने के लिए, ऐसा माना जाता है दैट गैलीलियो ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए पीसा की जो मीनार है, ठीक है, टावर ऑफ द पीसा है ना, इट इज़ ऑल्सो लीनिंग टावर ऑफ पीसा एक्चुअली, राइट. उन्होंने क्या किया,
इस टावर पे वो गए, ठीक है, उन्होंने 2 डिफरेंट मासेस की ऑब्जेक्ट्स ली, ऑलराइट, एंड ही ड्रॉप्ड बोथ एट द सेम टाइम, ठीक है। तो फिर उन्होंने नीचे जो लोग खड़े थे ऑब्जर्व किया कि वो दोनों सेम टाइम पे गिरी। इस बात पे गैलीलियो बिल्कुल स्ट्रांगली फर्म थे दैट दिस इज हैपनिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स अगर आप सेम टाइम पे जो है ड्रॉप करते हैं तो वो सेम टाइम पे ज़मीन पर पहुंचती हैं, ठीक है। ये उनका ऑब्जर्वेशन था, ये उनका कहना था, ठीक है। गैलीलियो ने ऐसा आर्ग्यू किया कि तुम जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो एक्चुअली में तुम फ्री फॉल नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो। मतलब हमारे अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरती है तो वो फ्री फॉल कर रही है, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रही है तो वो फ्री फॉल कर रही है, एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज ग्रेविटी, राइट। लेकिन गैलीलियो ने ये बोला कि 2 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट मासेस की अगर हम उन्हें जो है ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, वो सेम टाइम पर ही पहुंचेंगी, ठीक है, अगर वो फ्री फॉलिंग कर रही होंगी तो। बट ये जो एयर बीच में प्रेजेंट होती है ये इस मोशन को रेजिस्ट करती है, ठीक है। रेजिस्ट करने का मतलब ये इस मोशन को नहीं होने देता और मेक इट स्लो, ठीक है। सो दैट इज द कंक्लूजन मेड बाय गैलीलियो, ऑलराइट। नाउ अब इस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि अगर मैं अभी आपको बोलूं दैट एक फेदर, एक स्टोन ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। सो फेदर पे इसका मतलब क्या हुआ, फेदर अगर धीरे धीरे पहुंच रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेदर के ऊपर ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस है और स्टोन के ऊपर कम एयर रेजिस्टेंस है। अब ऐसा क्यों हुआ कि फेदर के ऊपर तो ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस हुआ लेकिन स्टोन के ऊपर कम हुआ? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट? इसका भी गैलीलियो ने जवाब दिया ऐसा। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अगर कोई मटेरियल डेंस होता है, ठीक है, डेंस मतलब उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है अगर, और उसका जो सरफेस एरिया हो वो छोटा होता है, इन दैट केस उसके ऊपर लगने वाला जो एयर रेजिस्टेंस है दैट विल बी लो, ऑलराइट, एंड वो तुम्हें जल्दी से गिरता हुआ दिखाई देगा, ऑलराइट। हम किन की बात करें? ऐसे सब्सटेंसेस की जो डेंस है एंड द सरफेस एरिया जो है उनका बहुत स्मॉल है, ऑलराइट। तो ऐसी चीज़ें लाइक स्टोन, वो एक डेंस मटेरियल है, राइट। आप कॉइन की बात कर सकते हो, किसी मेटल पीस की बात कर सकते हो। सो जो डेंस थिंग्स को अगर आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तो उनके ऊपर लगने वाला जो एयर रेजिस्टेंस होगा दैट वुड बी लो, ऑलराइट। द रीजन इज नॉट देयर मास, द रीजन इज द डेंसिटी एंड द सरफेस एरिया, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं ऐसी बॉडीज की जिनके पास एयर रेजिस्टेंस, जिनके ऊपर ज़्यादा लग रहा है, ऑलराइट। सो अब क्यों इन फेदर पे ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लगता है? वो इसलिए बिकॉज दे आर नॉट डेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू अ स्टोन, ऑलराइट। सो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द फेदर एंड द कॉइन, ऑब्वियसली कॉइन विल फॉल फास्टर, राइट। हमें जल्दी से मिल जाएगा, धरती पे पड़ा हुआ जल्दी पहुंच जाएगा धरती पे। बट फेदर आराम से झूलता झूलता आएगा। रीजन, उसके ऊपर ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस है बिकॉज उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। सो बेसिकली जब वो नीचे गिर रहा है ड्यू टू दैट सरफेस एरिया जिसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स वाई वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, ऑलराइट। ऑल्सो इट्स डेंसिटी इज लो, right? So there are these 2 factors which make you believe that the coin will fall first because it has greater mass than the feather. No, all right, that is not the correct. That is just our observation because we haven't considered the air resistance, all right. So basically यहाँ पर जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है एंड जब फ्री फॉल कर रहे होते हैं, all right, and what if we remove the एयर रेजिस्टेंस, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को हटा दें, ऑलराइट, अगर हम उसे हटा देते हैं तो दोनों चीज़ें, फेदर एंड कॉइन, दे विल बोथ फॉल साइमल्टेनियसली एट द सेम मोमेंट एंड रीच एट द ग्राउंड ओनली इफ द एयर रेजिस्टेंस इज रिमूव्ड, ऑलराइट। दैट इज द रीजन व्हाई दीज टू बिहेव सेपरेटली व्हेन दे आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, ऑलराइट, अंडर सेम environment, ऑलराइट। नाउ you know the reason behind this, why we see feather fall very much late, all right, and a coin fastly, all right, that is what we see, ठीक है। अब देखो, ये चाहो तो तुम ये नोट कर सकते हो, वैसे तो नोट करना बहुत ज़रूरी है, all right, you should definitely note the reasons behind these Galileo's observations, even though गैलीलियो ने जब ये observations दिए थे उस वक्त गैलीलियो को न्यूटन के जो लॉज हैं ये नहीं पता थे, ठीक है, क्योंकि उस वक्त तो न्यूटन आए ही नहीं थे, ऑलराइट। तो उस वक्त तक
गैलीलियो के पास ग्रेविटेशन की कोई इक्वेशन नहीं थी, ठीक है, उनके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन कुछ भी नहीं था, ऑलराइट, इवन उनके पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी नहीं थी, ऑलराइट. सो बेसिकली दैट इज द मेन थिंग. उसके बावजूद भी इन्होंने इस तरीके के ऑब्जर्वेशन दिए विच वर वेरी 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 करेक्ट, ऑलराइट. एंड जिस ईयर में गैलीलियो जो है गए, उसी ईयर में न्यूटन आए, ऑलराइट, एंड ही डिड दोज ऑब्जर्वेशंस. इवन आपको पता है कि इसके बाद मतलब जब गैलीलियो ने ऐसा आर्ग्यू किया कि अगर एयर को बिल्कुल हटा दिया जाए तब कॉइन एंड फेदर सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे, है ना, ये उनका आर्ग्यूमेंट था और इसको प्रूफ भी किया गया. प्रूफ करने वाले कौन थे? ब्रिटिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, ठीक है. प्रूफ करने वाले कौन थे? रॉबर्ट बॉयल. इन्होंने क्या किया एक्चुअली? रॉबर्ट बॉयल, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत लंबी ट्यूब्स ली, ठीक है. उन ट्यूब्स में उन्होंने क्या किया? कॉइन को डाला एक में और एक में फेदर को डाला, ठीक है. फिर क्या किया इन्होंने? इन ट्यूब्स के अंदर से वैक्यूम पंप की हेल्प से एयर को निकाल दिया. सो वैक्यूम क्रिएट हो गया अंदर, ऑलराइट. फिर इन्होंने इनको इन्वर्ट कर दिया एंड ही नोटेड द टाइम. उस टाइम को इन्होंने नोट किया जब वो दोनों नीचे सरफेस तक पहुंचेंगे. एंड ही रियली ऑब्जर्व दैट दे बोथ रीच एट द सेम टाइम, ऑलराइट. दैट इज द थिंग which we should know, that if that air is not present which is resisting the motion of this feather, if it is not present then both the things will fall simultaneously, all right. So you should definitely write this out. फटाफट से लिख लिया जाए. ऑलराइट, अभी तुम लोगों ने जो है इसे नोट कर लिया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नाउ वी नो द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द गैलीलियो. Even he didn't know the equations and all, but still he get the right observation. Alright, now let's move on to the next thing. That is the acceleration due to gravity. Alright, so we are going to talk about the three cases. Alright, ये observations जो हैं, जो मैं अभी तुमको three cases बता रही हूँ, ये तीनों के तीनों केसेस आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किए हुए हैं, ठीक है. मैं आपको जैसे बताऊंगी वैसे आपको पता चल जाएगा. फर्स्ट थिंग, ठीक है, फर्स्ट थिंग जो है, वेयर इज माई मार्कर, लेट मी डू दैट. देखो, फर्स्ट थिंग, जब ये जो बॉल आप देख रहे हैं, केस 1 की अगर हम बात करते हैं, तो जब ये बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं, व्हेन दिस बॉल गोज अप, ये बात हमने नोटिस की कि हम इसको जितनी वेलोसिटी से भेजते हैं, ठीक है, ऊपर जाते 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 इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, तब एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये रुक जाता है, मोमेंटरी रेस्ट पर आ जाता है, एंड देन इट स्टार्टेड टू फॉल बैक. ऑलराइट, दैट इज द केस 1. व्हेन वी थ्रो द बॉल इन द अप डायरेक्शन, वी ऑब्जर्व दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस, ऑलराइट, डिक्रीजेस ऑब्वियसली. Second case is when the ball is dropped from a height. इस बॉल को जब हमने नीचे की तरफ फेंका, ठीक है, तो भी जैसे जैसे ये नीचे आता गया इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता गया, डेफिनेटली फास्टर ये गिरने लगा. जैसे जैसे नीचे आ रहा है उसका वेलोसिटी और इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका वेलोसिटी और ज़्यादा फास्ट हो रहा है. दैट इज ऑब्जर्व बाय अस ऑल, राइट. थर्ड केस की अगर हम बात करें, दिस इज द केस जिसके अंदर हम सीधे फेंकने की बजाय वी आर throwing it at an angle, all right, like this, ठीक है, making a theta with the horizontal, all right. So when we throw, even when we throw like this, हम इसको अगर किसी एंगल पे भी फेंकते हैं तो भी हम लोगों ने नोटिस किया है कि ये किस तरीके से जाती है, क्या पाथ फॉलो करती है. इट फॉलोज अ पाथ लाइक दिस, राइट. इट चेंजेस इट्स पाथ. इसका मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है बट वैल्यू चेंज हो रही है. इफ यू टॉक अबाउट, राइट,
ऊपर जाते वक्त वैल्यू डिक्रीज होती है, नीचे आते वक्त वैल्यू, उसका जो वेलोसिटी का वैल्यू है इंक्रीज होता है, एंड जब उसे हम किसी एंगल पे भेजते हैं उसके पाथ की वजह से, इफ वी टॉक अबाउट इट्स पाथ, सो वी सी कि उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है, राइट? पहले वो ऐसे गई बट आफ्टर सम टाइम इट फॉल लाइक दिस, ऑलराइट? सो बेसिकली इसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज हुआ, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में या तो वैल्यू का चेंज हो या तो डायरेक्शन का चेंज हो, तो इसका मतलब वहां कौन प्रेजेंट है? वहां प्रेजेंट है एक्सेलरेशन, राइट? Change in velocity, that means you are getting an acceleration, all right? Not you, this ball, right? Because the velocity of this ball is changing, right? तो हमने यहाँ देखा कि there is an acceleration, there has to be an acceleration because we are observing things like this, right? Velocity change हो रही है, decrease हो रही है, increase हो रही है, either in terms of direction, either in terms of magnitude, right? But it is changing. That means every single time there is an acceleration present on this ball, right? Or you can say there is an acceleration working on this ball, right? अब हमें ये बात पहले से पता थी, ठीक है? ये जो हमने तीनों ही केसेस देखे हैं उस बात में हमें ये बात पहले से पता थी that we always know कि acceleration किससे आता है? Acceleration हमेशा एक फोर्स की वजह से आता है, alright? And हमें ये बात पता चली कि यहाँ पे जो acceleration actually present है, तो हमने देखा ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से यहाँ पे उस बॉडी को एक्सेलरेशन मिल सकती है, एंड द ओनली थिंग दैट वाज प्रेजेंट इज अर्थ, राइट? उसके अलावा तो कोई चीज उस पर वर्क नहीं कर रही थी, कोई पुश नहीं था, कोई पुल नहीं था, ओनली थिंग प्रेजेंट वाज द अर्थ, एंड ड्यू टू दैट अर्थ, हमें ये बात पता है बिकॉज वो एक फोर्स अप्लाई करती है, ऑलराइट, एवरी सिंगल टाइम, एंड ड्यू टू दैट फोर्स we get an acceleration or this ball get an acceleration, right, which is known as the acceleration due to gravity, alright? That means एक ऐसा acceleration जो हमारी earth provide कर रही है every single time, that is the acceleration due to gravity, and we denote it by a small g, alright, not a capital G. Capital G is the universal constant, alright, gravitational universal constant, and this g, small g, is actually the acceleration due to gravity. Alright, तो यहाँ पे हमें जो है पता चला that earth is applying a force, and due to that force objects are observing an acceleration on them, due to which they are getting the change in velocity. Alright, so this is the thing you should note it down. Now let's move on to the next thing. Alright, now let's try to calculate the value of that acceleration due to gravity. ठीक है, इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं. Alright, हमने एक ऐसी मास, ऐसी बॉडी को हम लोगों ने जो है अज्यूम किया है that it is falling or moving on the surface of the earth, and when we talk about near the earth surface, जब तुम्हें कहीं भी ये फ्रेज मिले near the earth surface, always remember we are talking about the surface on which we are living, alright, because हम लोग बॉल को इतना दूर नहीं फेंकते हैं, ठीक है, बॉल जो है ज़्यादा हाइट तक नहीं जाती है, सो उस एरिया को, मतलब यू कैन से द थिंग लाइक दिस, अगर अर्थ का सरफेस ये है तो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो है इसे माना जाता है कि भाई ये नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है, जैसे बॉल मैंने यहाँ फेंकी तो इट विल गोज लाइक दिस, सरफेस ऑफ द अर्थ है ना ये, तो यहाँ से अगर मैं बॉल फेंकती हूँ तो आई वुड बी गेटिंग अ पाथ लाइक दिस, ठीक है, तो ये पाथ बहुत छोटा है, अर्थ के साइज के अकॉर्डिंग दिस पाथ इज वेरी 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 स्मॉल, alright, and that's why I am going to tell you, whenever you get this phrase near the surface, earth surface or the surface of the earth, it always means that the object or the observations are taken on this surface on which we walk, alright, near that surface actually what we talking about, right? इतने सरफेस में और इतने सरफेस में अगर हम बात करते हैं then we are talking about it is totally near to the earth surface, ठीक है, हम एरोप्लेन के हाइट्स तक की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ जिस हाइट तक एरोप्लेन्स फ्लो करते हैं, ठीक है, फ्लाई करते हैं एक्चुअली.
ऑलराइट, तो हम लोगों ने ये माना है कि एक छोटी सी m मास की बॉल है, इधर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ऑलराइट, अब हमने क्या किया है, मेन चीज वो क्या है, हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया है। ऑलराइट, एंड यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, तभी हम बोलेंगे दैट द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्री फॉल। ठीक है, whenever you heard free fall, that means only one force is acting on that object, that is the force due to gravity. All right, whenever you heard the free fall, just a force is acting on it, that is the acceleration, not the force due to gravity actually. All right, make sure, and that's why when we talk about free fall, we always neglect the air resistance. ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो फोर्स है उसको माना है, सिर्फ उसी फोर्स को माना है, अर्थ के फोर्स को माना है, हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया है। ऑलराइट, अब तुम ये बात जानते हो कि अर्थ कितना फोर्स लगाती है, वी हैव ऑलरेडी रेड द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एज यू कैन सी हियर कि जो फोर्स अप्लाई होगा दैट वुड बी जी, एक्सेलरेशन नहीं, दैट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ, ऑलराइट, mass of the body which is moving or which is falling divided by the radius of the earth and its square. Right, now remember it. Next what is I'm going to tell you is this re square. Now first let's mark this equation 1. ठीक है, ये हमारी equation 1 है। ये जो re का वैल्यू है, तुम बोलोगे कि भाई सरफेस से तो बॉल ऊपर होगी, राइट, तो रेडियस ऑफ द अर्थ तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, राइट। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं वो तो लिखी हैं, साथ में अर्थ का जो रेडियस होता है, अर्थ का रेडियस दैट इज 6400 किलोमीटर, ठीक है, एंड जब हम इस 64 किलोमीटर, इस 6400 किलोमीटर को कंपेयर करते हैं इस बॉल की हाइट से, जो कि सिर्फ इतनी सी है, मतलब इतना भी नहीं होगा, ठीक है, हम मतलब मैंने बॉल फेंकी तो रूम की हाइट भी जो है वो भी कम पड़ जाएगी, राइट। सो डेफिनेट सी बात है, अगर हम इस 6400 किलोमीटर को कंपेयर करें बॉल की हाइट पे कि बॉल कितने ऊपर तक जाएगी, ऐसे कंपेयर करें, उस कंपैरिजन में हमें ये बात पता है कि वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, राइट, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, दैट्स व्हाई वी हैव नेग्लेक्टेड दैट हाइट। ऑलराइट, एंड हमें क्या किया, हमने फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से हम लोगों ने जो बॉल का डिस्टेंस है, जहां बॉल है एक्चुअली में, इफ वी टॉक अबाउट लाइक दिस इज द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, लेट मी ड्रॉ दैट अगेन, ठीक है, लेट्स सी, दिस इज द अर्थ, ऑलराइट, दिस इज द अर्थ, this is the center of the earth and this is the radius, all right, this is the re, this is the re radius of the earth, and ये जो distance है which is very much, मान लो देखो ये अगर distance है ना तो बॉल यहाँ होगी, इतनी छोटी सी, इतनी सी दूर, बस अगर हम रियल अर्थ की बात करते हैं उनके टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, इफ दिस इज द re then ball will be here somewhere here, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है जो बॉल एक्चुअली कवर अप करती फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो सेंटर ऑफ द मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ से जो डिस्टेंस है टोटली नेग्लिजिबल में कंपैरिजन में आता है। ऑलराइट, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे मेनली वो डिस्टेंस गायब कर रहे हैं जो कि अर्थ सरफेस से है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे है, नॉट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, ठीक है, इसलिए हमने ये जो re यूज किया है इक्वेशन 1 में टू डिनोट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट, ये डिनोट करने के लिए, सेंटर ऑफ द अर्थ से मेजर करने के लिए, नॉट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ से मेजर करने के लिए वी हैव नेग्लेक्टेड दैट डिस्टेंस व्हिच इज वेरी 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 स्मॉल, राइट, एंड वी ऑलवेज नेग्लेक्ट द स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ठीक है, ये हम जब हम कैलकुलेशन पार्ट करते हैं उसके लिए हम पक्का पक्का ऐसा ही करते हैं, ठीक है, और आगे भी जब हम कैलकुलेशंस करेंगे वी विल बी डिराइविंग ऑल द थिंग्स एंड वी विल बी सीइंग द चेंज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस, वी विल बी डूइंग दैट अगेन। ऑलराइट, नाउ लिसन, ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली में है, ऑलराइट, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, राइट, अब हमें ये बात पता है दैट किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई एक्सेलरेशन है, उसके पास कोई मास है, तो एक और फॉर्मूला हम फोर्स का लिखते हैं, व्हाट इज इट, F इक्वल्स टू ma, राइट, वो भी हम लिखते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन 1 and we are going to get that equation also.
ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू एफ बाय एम लिखने की कोशिश करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज एम ए इज इक्वल्स टू एफ. वी नो दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट acceleration and the mass of the object, we are going to multiply them, we are going to get a force, right? We are going to get a force. So I can calculate the value of acceleration by using this equation, obviously, right? Now let's do it. यहाँ पे f by m अगर हम बात करें, ठीक है, f by m अगर हम बात करें, so what we will be getting actually, हमारा जो फोर्स था, व्हाट वाज दैट? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर. नाउ दिस फोर्स इज डिवाइडेड बाय अ m, राइट? m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा. अब एक इकलौता फ्रैक्शन जो हमें मिला है वो है g me डिवाइडेड बाय re स्क्वायर, राइट? एंड एक और चीज आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस ए वुड बी दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू विच द बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी, ऑलराइट? सो बेसिकली अगर हम ये माने, व्हाट इज दिस ए एक्चुअली यहाँ पर, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स विच इज ड्यू टू ग्रेविटी, right? The mass of the object, then we are getting an acceleration due to gravity. All right, so this is the value of g, the small g, the acceleration due to gravity. All right, I'm going to write here so that you will not be getting confused anymore. See, gme re square, that is the acceleration due to gravity. Also observe one thing, what is that? This expression is independent on the mass of the object, राइट? कोई ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, उसको ड्रॉप किया, वो नीचे गई, ऑलराइट? कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज से कि उसका मास कितना है, उसके ऊपर हमेशा एक ही एक्सेलरेशन जो है वर्क करने वाला है, ठीक है? अगर एक ही एक्सेलरेशन वर्क करेगा और टॉप पॉइंट पे वो जीरो वेलोसिटी की होगी, तो नीचे आते आते सभी ऑब्जेक्ट्स का सेम ही एक्सेलरेशन होगा, और यू कैन से सेम ही उनका फाइनल वेलोसिटी होगा, राइट? बिकॉज देयर इज नो द टर्म फॉर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, right? And that is the main thing, you should note them down, because this is the reason what we know about it. This acceleration does not depend on the mass of the object, all right? This is what you are going to get. Note this down very fast. ऑलराइट, अगर इकलौता जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बिकॉज ये जो फोर्स है दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ओनली, राइट? इसके अलावा हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया है, तो इकलौता जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट? ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसी की वजह से हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है ऑन दैट ऑब्जेक्ट, राइट? एंड दैट एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? If gravity is the only acting force, that means we are going to get an acceleration due to gravity, all right? And we can write its value, g equals to capital G, mass of the earth का square divided by radius of the earth का, no, I'm going to get a little bit of eraser, ठीक है? अब अगर यहाँ पे मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ, बिकॉज आई नो द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आई नो द मास ऑफ द अर्थ, आई नो द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है? सो इफ आई राइट ऑल द वैल्यूज, जी का वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11. मास ऑफ द अर्थ कितना होता है? 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, ठीक है? एंड राइट दीज डाउन. मैंने क्या कर रही हूँ, अलग अलग जो है बंद कर रही हूँ, है ना, ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं हो, है ना? और इसके बाद जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो कितना होता है? वो है 6.4 इंटू 10 की पावर 6.
मीटर उसका स्क्वायर। सारी वैल्यूज हमने एसआई यूनिट्स में ली हैं। डू नॉट फॉरगेट, इफ आई से 6400 किलोमीटर, दैट मीन्स यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू मीटर व्हाइल यू राइट द वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन। ऑलराइट, अब देखो, इफ यू कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है, अगर तुम ये पूरा अच्छे से कैलकुलेट करते हो, यू विल बी गेटिंग अ 9.8 वैल्यू, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, दिस is the acceleration due to gravity. This is the value of the acceleration due to gravity, 9.8 meter per second square. All right, you are going to get that even if you do with the calculator. All right, so this is the thing you should note down. All right, and I am going to tell you the next thing also, which is the direction. इसका जो direction होता है, that is always towards the center of the earth, always, ठीक है। तो if we talk about a round earth, what happened? देखो, अगर हम राउंड अर्थ की बात करते हैं ना, तो तुम बोलोगे इसका जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, राइट। इसका मतलब अगर मैं बॉल को यहाँ ऊपर की तरफ फेंकूंगी तो भी वो इधर की तरफ जानी चाहिए, यहाँ पे कहीं पे मैं ऊपर फेंकूंगी तो भी वो इधर की तरफ जानी चाहिए, यहाँ कहीं ऊपर फेंकूंगी तो भी वो इधर की तरफ जानी चाहिए, यहाँ कहीं ऊपर फेंकूंगी तो भी वो इधर की तरफ जाना चाहिए। दिस इज हाउ इट विल गोइंग टू एक्ट towards the center of the earth, ठीक है, हमेशा, always, it has only one direction। all right, so basically you need to note this down, and then we'll be moving forward to the what we will be doing next, we will be doing the calculation, ठीक है। हम लोग मून पे acceleration due to gravity का calculation करेंगे, ठीक है। चलो इसे हम फटाफट से नोट कर लेते हैं। All right, now let's move forward, ठीक है, हम आगे चलते हैं, and we calculate the value of g on the surface of the moon, ठीक है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, फटाफट से इक्वेशन लिख देती हूँ। This is the equation to find value of acceleration due to gravity, all right, where we know the mass is actually this m is denoting the mass of the planet, या फिर जिस हेवनली बॉडी की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ मून की बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ द मून। आर एक वो वैल्यू है दैट इज द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट और रेडियस ऑफ दैट ह्यूज बॉडी, हेवनली बॉडी, ठीक है, जो कि मून है यहाँ पे अगेन। अब देखो, डिफरेंट बॉडीज हैं, ठीक है, डिफरेंट मासेस हैं, डिफरेंट एसेलरेशन है, सो वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑलराइट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, कितना वहां पे एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। नाउ सी, mass of the moon is 7.4 into 10 की पावर 22 kg, radius of the moon is 1.75 into 10 की पावर 6 meter, and g is this that we all know. Now let's calculate the acceleration due to gravity on the moon, right? Let's write it, gm, ठीक है, g moon, we are going to calculate the g moon, ठीक है। what is that? अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले g का वैल्यू लिख रहे हैं, कैपिटल g का वैल्यू लिख रहे हैं, 6.67 into 10 की पावर -11। ऑल राइट, यहाँ पे देखो सब यूनिट जो है ना वो ऑलरेडी SI में कन्वर्टेड है, सो वी डू नॉट नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग। अब आता है मास ऑफ द मून, दैट इज mm, विच इज 7.4 into 10 की पावर 22 kg। All right, and then I'm going to write the radius of the moon, that is 1.75 into 10 की power 6 meter और उसका square. All right, so we have written this value, and after calculating, all right, after calculating all such values, you are going to get a value. All right, and what is that? 1.63 meter per second square. You will going to get 1.63 meter per second square, ठीक है। अब तुम बोलोगे ये कैसे लिखा, बिकॉज आई नो द वैल्यू, ठीक है, मुझे पता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है मून पे। ऑलराइट, एज यू कैन सी हियर,
अर्थ का तो 9.8 होता है, मून का तो 1.63 होता है। दैट मीन्स कितना कम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे अवेलेबल है, राइट, कितना कम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अवेलेबल है। एंड डू यू नो दैट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल वैल्यू, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल वैल्यू, देयर इज नो एनी एटमोस्फेयर ऑन द मून। ठीक है, वहाँ पे कोई एटमोस्फेयर नहीं, हमारे जैसा अर्थ में एयर है, राइट, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, राइट, ऐसा एटमोस्फेयर मून पे नहीं है। रीजन इज दिस स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मून के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो एयर के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के अपने एक्सेलरेशन मतलब अपनी ग्रेविटी से पकड़ के रख सके, ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई मून के ऊपर कोई एटमोस्फेयर नहीं है, ऑलराइट, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज द एडिशनल इन्फो, ऑलराइट। अब देखो इसे हमने जो है वैसे तो तुमने नोट कर ही लिया होगा, है ना, कर ही लिया होगा तुम लोगों ने। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, रिलेशन बिटवीन जी मून एंड जी अर्थ। ठीक है, जी मून और जी अर्थ वैल्यू देख लेते हैं। अभी अभी तो हम लोगों ने कैलकुलेट की है, तो हमने कैलकुलेट की थी कि जो ये जी मून है वो कितना है, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलराइट, एंड वी ऑलरेडी नो दैट जी अर्थ कितना है, जी अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलराइट। इन दोनों में रिलेशन लेट्स फाइंड आउट, कंपैरिजन टू द अर्थ, मून पे कितना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, ऑलराइट। चलो ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, जी मून डिवाइडेड बाय जी अर्थ, so that means I am going to divide 1.63 meter per second square divided by 9.8 meter per second square। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है, मतलब इफ यू डिवाइड 9.8 फ्रॉम बाय 1.63, ठीक है, 9.8 को अगर तुम डिवाइड करोगे यू विल बी गेटिंग अ 6, right, that's why I'm going to tell that it is 1.63 is actually 6 times, ठीक है, और नहीं 9.8, right, तो you will be getting 1.6, that means 9.8 is actually 6 times of 1.63, alright, that's why you are going to get the 1/6 value, and because of this 1/6 value you are going to get G moon as 1/6 of G earth, so that means मून के ऊपर जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक्चुअली अर्थ का जितना ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका 6 अगर हम डिवाइड कर दें, मतलब उसका बाय 6, राइट, 1/6 पार्ट जो है अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो वैल्यू मून पर अवेलेबल है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ऑन दी मून, ऑलराइट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन जी मून एंड द जी अर्थ, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू मून, acceleration due to gravity on moon and acceleration due to gravity on earth, right, we are talking about these two terms, ठीक है, you should definitely note it down। उसके बाद अभी इसको आप जब से नोट कर ले वैसे ही उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं, बिकॉज वी नो ऑल द वैल्यूज, हमें सारी वैल्यूज पता है, हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, दैट्स वाई अब हम मास ऑफ द अर्थ पे फोकस करेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि ये जो मास ऑफ द अर्थ बताया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट दैट यूजिंग दिस वैल्यूज, ठीक है। चलो अभी तुम जो है इसे फटाफट से नोट करो, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू ऑलराइट। अब हम चले आगे फटाफट से, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ को हम एक्चुअली में न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज सब रिलेटेड है, ऑलराइट, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन डू दैट। लेट्स कंसीडर अ वन थिंग मोर, ऑलराइट, नहीं आया, देखो, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, हमने जो है कंसीडर किया है कि अगर जैसे दिस इज दी कहाँ बताऊँ, this is the surface of the earth, if this is the surface of the earth, so a body is lying on this surface, मतलब जमीन पे पड़ी हुई है, alright, lying on the surface, so m मास की एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो surface of the earth पे रखी हुई है, ठीक है, रखी नहीं, it's not moving, it's already capped, रखी हुई है, ठीक है, and the force of gravity acting on the body is given by, so we know the force of gravity acting on that body will be what,
एफ इज, ठीक है, इक्वल्स टू जी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द अर्थ, उसका स्क्वायर, बिकॉज अब तो वो दूर है ही नहीं, राइट. सो वी आर गोइंग टू राइट दी distance from the center of the earth, that is radius of the earth, all right, r e square, all right. We can write this as equation 1, ठीक है. एक और चीज़ जो हमने पहले भी की हुई है, what is that, हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी देखा हुआ है कि इसका जो वेट है, all right, what is that, mass into acceleration due to gravity, mg, we can write that, right. अब देखो, अगर मैं इन दोनों ही, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, all right. इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं इक्वेट करती हूँ, बिकॉज दिस एफ आर ऑल द सेम, दोनों एफ बराबर ही तो हैं. वेट की अगर हम बात करें तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, उसी फोर्स की वजह से हो रहा है, राइट. तो मतलब ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, दीज आर एग्जैक्ट द सेम थिंग, बस एक्सप्रेशन डिफरेंट है, ऑलराइट, बिकॉज हमने यहाँ पे जी को इंट्रोड्यूस करने के लिए ऐसा किया है, ठीक है. नाउ वी आर इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस, है ना. तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं. So I'm going to write here equating 1 and 2. दोनों को इक्वेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, mg इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर. एज यू कैन सी हियर m से m कैंसिल. बेसिकली वी आर गोइंग टू गेट द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑलराइट. अब हम यहाँ तक पहुँच गए, हमें g मिल गया. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है. अब देखो, जो हमें g मिला, उस g को हमने ऐसे रख दिया, नॉट दैट स्क्वायर, आई एम ऑलवेज पुटिंग इट. ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो मास ऑफ द अर्थ है इसका वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है. दैट्स वाई आई एम गोइंग टू रीअरेंज दिस इक्वेशन. जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी इज गोइंग टू गेट मी द मास ऑफ द अर्थ, ऑलराइट. अब देखो, सिंपली पुट द वैल्यूज. मास ऑफ द अर्थ इज गोइंग टू बी 9.8 into radius of the earth, that is 6.4 into 10 raised to the power 6 square divided by 6.67 into 10 की power minus 11. All right, if you are going to calculate this, you will be getting an approximate value, that is how much? You will be getting 5.98 something, because that is the mass of the earth, 224 kg. You will be going to get this much of the value, ठीक है, 5. और अगर तुम इसे round off भी करते हो, you are going to get 6, right? 6 into 10 की power 24. But here you can see the order of the mass of the earth, right? Not the moon. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं the mass of earth is of the order 10 raised to the 25 kg. ठीक है, means not actually kg, but we are going to get a value, ऐसा value जिसके round off you are going to get the mass. ठीक है, तो तुमको एक्चुअली में जो अर्थ का मास मिलेगा दैट इज 5.98 इंटू 10 की पावर 24. ठीक है, ये तो इसका एक्चुअली ऑलमोस्ट अप्रोक्स आपको मिल जाएगा. बट अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर्स ओनली, not the magnitude, the actual number, we are not talking about that, we are talking about the powers, है ना, in terms of 10. ठीक है, उसको हम ऑर्डर बोलते हैं. सो मैंने तुम्हें जब बताया था ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी के बीच में जब डिफरेंस बताया था, तब मैंने तुम्हें बताया था कि दो ऐसी ऑब्जेक्ट जिनका मास सेम ऑर्डर का हो, ये वर्ड मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ, राइट, सेम ऑर्डर का हो ग्रेविटेशन के केस में, तब हम बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है दैट वुड बी द ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन अगर दो बॉडीज का मास जो कि सेम ऑर्डर में नहीं हो, उनको हम बोल देते हैं क्या, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि एक बॉडी बहुत छोटी होती है, एक बॉडी बहुत बड़ी होती है, राइट. तो मैं जो सेम ऑर्डर की बात कर रही थी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस.
the power raised to the 10, I'm talking about that. All right, so it is of the order 10 की power 25. All right, note this down. ऑल राइट, सो बेसिकली हम लोगों ने आज जो हमें पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया है. ऑल राइट, दैट इज इट. जो हमने आज देखना था वो हमने देख चुका है. नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मीन डेंसिटी. All right, the variation of acceleration due to gravity at different places, due to rotation of the earth, and different things, right? That is what we are going to do in the next lecture. So I hope I will see you in the next lecture. Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much, and let me see you again in the next lecture. Thank you so much.